गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो 20th चैप्टर है टीचिंग इन द टॉल्स्टॉय फार्म, ये अभी मैं आपको कराऊंगी। इसका पिंक बॉक्स मैं पढ़ रही हूँ। एम के गांधी 1869 to 1948, मोहनदास करमचंद गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स the world has ever seen, was born on 2nd October 1869 at Pobandar, Kathiawad in Gujarat. He had his schooling in Rajkot. He passed his matriculation in 1887. He went to England to study law. Gandhiji was basically not a writer. Writing with him was for imparting information, changing the mind of the masses to his point of view. The qualities found in Gandhiji's writing are simplicity, economy, frankness, and truthfulness. These characteristics establish him as a prose writer of destination among Indian literary giants of English. In this short essay, Mahatma Gandhi records his unique experience. He was staying in the Tolstoy farm in South Africa. There were some young boys and girls in that farm. These boys and girls belonged to different religion: Hindu, Muslim, Parsi, and Christian. His Gandhiji and his two colleagues, Mr. Kallerbeck and Smita Pragji Desai, decided to educate these children. It was a difficult task to impart proper education without the help of any aid. Still, Gandhiji and his colleagues saw to it that the students had all round development while paying great attention to character building. The body building was also not neglected. They taught Hindi, English, Tamil, Gujarati, Urdu, Sanskrit, history, geography, and arithmetic. They taught all this without any textbook because Gandhiji believed that the true textbook for the pupil is his teacher. Okay. अब यहाँ पर ये जो टीचिंग इन द टॉल्स्टॉय फार्म है, ये गांधी जी ने लिखा है। और टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में है। वहाँ पर जब ये रहे थे तो इनने बच्चों को एक साथ रखा था, जैसे कि किसी बोर्डिंग में होता है, वहाँ पर वो लोग रहते थे और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। वो फिज़िकली भी उनको ट्रेनिंग मिलती थी, मेंटली भी मिलती थी, उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। रहना, और जैसे एक फिनिशिंग स्कूल होता है जहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, कुछ वैसा ही था ये। और इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। इवन उनको ये तक बताया जाता था कि अगर आगे ज़िंदगी में आप फ्यूचर में अगर आगे जाते हैं और आपको कुछ काम करना है तो काम करना भी सिखाया जाता था, अलग अलग तरीके के, जैसे शू मेकिंग हो गया या लकड़ी काटना, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कारपेंट्री, ऐसी टाइप की सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, जिससे कि वो अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सके। और पहले के ऐसे ही काम होते थे। पहले लोग बैग उठा के ऑफिस नहीं जाते थे और ये सब काम नहीं हुआ करते थे। तो इधर पर ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी जो उनकी ज़िंदगी में काम आए। उनके साथ दो और लोग थे गांधी जी के साथ, और वही थे जो सब इनको अच्छे से सिखाते थे। यहाँ पर कोई भी कास्टिज्म और रिलीजन को भेदभाव ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, मगर सब कुछ को, हर किसी रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती थी और सब लोग मिलके अच्छे से रहते थे। Page 165. As the farm grew, it was found necessary to make some provision for the education of its boys and girls. There were among these Hindu, Muslim, Parsi, and Christian boys, some Hindu girls. It was not possible, and I did not think it necessary to engage special teachers for them. It was not possible for qualified Indian teachers were scarce, and even when available, none would be ready to go to place 21 miles distant from Johannesburg on a small salary. Another, also we were certainly not overflowing with money.
and I did not think it necessary to import teachers from outside the farm. I did not believe in existing system of education, and I had a mind to find out by experience and experiment the true system. अब यहाँ पर जो टॉल्स्टॉय फार्म था जो साउथ अफ्रीका में था, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते थे, सारे रिलीजन के थे, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था. इसमें 2 टीचर्स इनके साथ थे, और बाकी टीचर्स जो भी क्वालिफाइड थे वो या तो कम थे, और अगर थे भी तो इधर आना चाहते नहीं थे, क्योंकि ये 21 माइल्स दूर था जोहान्सबर्ग से, और इतनी कम सैलरी में इतने दूर आना बहुत ही मुश्किल था. इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, फंड्स जो बोलते हैं ना वो इतने नहीं थे. तो इसीलिए इन लोग ने गांधी जी ने और इनके जो कलीग्स थे, इन लोग ने सोचा कि बाहर से टीचर्स को इम्पोर्ट करना और उनको पैसे देना जो इनके पास ऑलरेडी नहीं थे वो बहुत मुश्किल था. इसलिए इनने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को खुद ही सिखाना सोचा कि कैसे हम खुद ही सिखाएं इनको सब चीज़ें. Only this much I knew, that under ideal conditions, true education could be imparted only by parents, and that then there should be the minimum of outside help. The Tolstoy farm was a family in which I occupied the place of a father, and that I should, so far as possible, shoulder the responsibility for training of the young. Okay. अब यहाँ गांधी जी को लगता था कि बच्चों को सही एजुकेशन उनके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, और यहाँ पर इसीलिए उनने ऐसी आइडल कंडीशन मतलब बनाई जिससे कि वो खुद ही एजुकेशन दे सकें. उनको लगता था टॉल्स्टॉय फार्म एक पूरी, उसमें जो लोग हैं सब एक फैमिली हैं, और ये उनके हेड हैं, फादर हैं जो सारे बच्चों के, और इसीलिए इनने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कैसे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकें और एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें. The conception, no doubt, was not without its flaws. All the young people had not been with me since their childhood. They had been brought up in different conditions and environments, and they did not belong to the same religion. How could I do full justice to the young people thus circumstanced? Even I assume the place of pater familias. अब यहाँ पर था कि इनके ये जो कंसेप्शन था या आइडिया था कि ये खुद ही पूरी एजुकेशन देंगे, उसमें भी कुछ फ्लॉज थे, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल सही सही हो ये ज़रूरी नहीं है. ये बच्चे जो थे यहाँ पर यंग होके आए हैं, और यहाँ पर अपनी एजुकेशन लेने आए हैं. पहले से ये लोग इनके साथ नहीं थे, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही थी. प्लस वो अलग रिलीजन्स के थे, उनका एनवायरनमेंट जो घर में था इधर था सब डिफरेंट था, इसीलिए वो चीज़ें पूरी करने में, पूरे आइडियाज़ को फॉलो करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, थोड़ी गलतियाँ भी हो रही थी. मगर इनने ये सोचा कि यही फादर बनेंगे इस फैमिली के, और अच्छे से सबको सिखाएंगे, समझाएंगे, और इनने वो भार उठाया अपने ऊपर, अपने कंधों पर उठाया, और इनने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करी.